Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmin sir. Dear students, you are most welcome once again my YouTube channel Achievers Academy. Students, previously I have discussed chapter 6 every drops count part 2nd video. Today I will discuss about part number 3 video. Students, continuing the exercise question answer once again related to your text. I would like to just clarify the question. Here is name 3 natural sources of water. Dear students, you have to know about this. What is the natural source of water? Here you must be just know about this. What is the 3 natural source of water on our earth? Definitely students, I would like to here write answer. Firstly, rainwater is the main natural source of water on earth. Okay students, second one I would like to hear rainwater and surface water also we can write here, and third is here underground water. Okay students, surface water, underground water, second and third. First, main resources rainwater, and surface water is also resource of the water, and underground water definitely this is the main resource also of the water. If I talk about surface water, what kinds of surface water I can discuss here, as like ponds, river, bowlies, okay, lakes, etc. Okay students, these are the surface water resources. Okay students, these are the ponds, river, bowli, lakes, etc. These are the surface water. Underground water we can discuss here hand pump, borewell, etc. Okay, these are the underground water. So I can say here 3 main resources of natural water is rainwater, surface water, underground water. Okay students, I hope you must be clear. Then every time you must be know about this, what is the 3 natural source of water. Firstly you can say rainwater, surface water and underground water. Okay students, I hope you must be clear. Let's see another question. Students, here is second question. Write 2 ways of water storage in olden days. पुराने समय में वाटर को स्टोर करने के लिए 2 वेज बताइए जो कि उन दिनों वाटर स्टोरेज किया जाता था. तो लेट्स सी हियर आंसर स्टूडेंट्स. वाटर स्टोरेज in olden days firstly by making lakes बना करके क्या किया जाता था, पानी को स्टोर किया जाता था. सेकेंड वन by making step well.
ओके, स्टेप वेल भी बनाया जाता था पानी को कलेक्ट करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। फर्स्टली लेक्स, सेकेंड वन स्टेप वेल, एंड ऑल्सो यू कैन राइट डाउन जोहट्स जो होता था वो अभी हम उसको अलग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। राइट टू वेज ऑफ वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज। Water storage in olden days, firstly by making lakes, by making step well. Okay, so I hope you must be understood. Okay students, let's see another question. Dear students, let's see another question. What is step well? What is step well? Dear students, step well, answer is here. Step well is multi-storied well in which water is reached descending in a set of steps. Okay students, what is the meaning of this step well? Step well is multi-storied well. ये एक प्रकार का वेल होता है, एक प्रकार का कुआं होता है। ये ऐसा कुआं होता है जो मल्टी स्टोरीड होता है। ओके, in which water is reached descending in a set of steps. इसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं और ये कई स्टोरी के लेवल में इसको तैयार किया जाता है। ओके, और हर स्टोरी पे जाने के लिए इसमें स्टेप्स लगाए जाते हैं जिससे आदमी आसानी से पानी की तलहटी तक पहुंच जाए। जैसे ही पानी ये सूखता जाएगा उस तरह से डिसेंडिंग आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे, और जब पानी ऊपर रहेगा, पानी का लेवल सरफेस ऊपर रहेगा, तो आप ऊपर की सीढ़ियों से ही पानी ले सकते हैं। स्टेप वेल इज मल्टी स्टोरीड वेल इन विच वाटर इज रीच डिसेंडिंग इन ए सेट ऑफ स्टेप्स। वाटर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं, पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है, और ये मल्टी स्टोरीड वेल होता है। तो आई होप यू मस्ट बी क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टेप वेल। एंड लेट्स सी हियर, क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर जोहट्स। जोहट्स क्या होते हैं? व्हाट आर जोहट्स? स्टूडेंट्स, हियर आई वुड लाइक टू गिव दिस आंसर। लार्ज पिट to collect rain water is called जोहट्स। Okay students, here is the answer, large pits to collect rain water। ये बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे गड्ढे किए जाते हैं। लार्ज पिट्स टू कलेक्ट रेन वाटर, वहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ऐसे गड्ढों को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड जोहट्स। उन्हीं का नाम जोहट्स होता है। ओके, लार्ज पिट्स टू कलेक्ट रेन वाटर इज कॉल्ड जोहट्स। व्हाट आर जोहट्स?
Johars large pits to collect rainwater is called Johars. And I hope you must be clear. Let's revise here. What is step well? Step well is multi-storied well in which water is reached in descending in a set of steps. Descending in a set of steps, that means इसमें सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं और ये मल्टी स्टोरीड वेल होता है. स्टेप वेल इज ए मल्टी स्टोरीड वेल इन विच वाटर इज रीच डिसेंडिंग इन ए सेट ऑफ स्टेप्स. वाटर स्टेप वेल क्या होता है? मल्टी स्टोरीड वेल होता है इन विच, जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है और ये कई सेट में, कई स्टोरीज में बनाई जाती हैं. और जैसे ही पानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, सरफेस लेवल कम होता है, वाटर लेवल कम होता है, तो नीचे सीढ़ियों के द्वारा नीचे लोग पहुंच करके पानी लिया करते हैं और उससे पानी का उपयोग करते हैं. सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. व्हाट आर जोहर्स? लार्ज पिट्स टू कलेक्ट रेन वाटर इज कॉल्ड जोहर्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Dear students, let's see another question. Here is the question. Match the column. Match the column first. Here, water storage in olden days. Olden days में water storage कैसे होता था? First, second is here rain water harvesting. Rain water harvesting. What is rain water harvesting? Third is step well are called as. फोर्थ इज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज. ड्रिंकिंग वाटर को पैकेज करने के लिए, पैकेज्ड किससे रिलेट करेगा? हियर फर्स्ट इज हियर यूज फॉर, इन सेकेंड कॉलम यूज फॉर ट्रेवलिंग, बाउडी और बाउली, वाटर कंजर्वेशन, लेक्स एंड स्टेपल्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर. फर्स्टली वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज. ओल्डन डेज में वाटर स्टोरेज कैसे होता था? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन से, कहाँ पे स्टोरेज होता था? लेक्स एंड स्टेपवेल. वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज, लेक्स एंड स्टेपवेल. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर. वाटर का स्टोरेज कहाँ पे होता था पुराने समय में? लेक्स में और स्टेप वेल्स में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर कंजर्वेशन. हियर इज द कॉलम बी, इट्स रिलेट टू वाटर कंजर्वेशन. रेन हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं? वाटर कंजर्वेशन. जल का संरक्षण ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी थर्ड. स्टेप वेल आर कॉल्ड एज. स्टेप वेल को और क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? स्टेप वेल आर कॉल्ड एज बाउडी और बाउली. ओके, स्टेप वेल को ही बाउडी या बाउली के नाम से भी बुलाया जाता है. ओके. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर किसके लिए यूज किया जाता है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, दिस विल गो यूज फॉर ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग करते समय इसको यूज में लाया जाता है. Okay students, I hope you must be clear. First, water storage in olden days. This will relate in lakes and stepwell. वाटर स्टोरेज ओल्डन डेज में कहाँ पे होता था? लेक्स में और स्टेपवेल में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है. स्टेपवेल आर कॉल्ड एज बाउडी और बाउली आल्सो. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज यूज फॉर ट्रेवलिंग. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर. मैच द कॉलम. ओके
So students, let's see another question. Dear students, let's see another question. Fill in the blanks with suitable words. Students, question is here. Fill in the blanks with suitable words. What is the words here? Firstly, I would like to clarify. First, lakes. Here is second, little. Okay, lakes, little. Celebrate. And third is fourth is step bell. Okay, and here is a ghats. Fifth is a ghats. So you can see here the word lakes, little, celebrate, step bell, ghats. Dear students, let's see the statement, and where is the blanks? We will try about the proper words we must be filled. So students, firstly, people in earlier time used to make. पहले के लोग people in earlier time used to make for the travelers. travelers के लिए क्या यूज करते थे? अभी हम क्या travelers के लिए यूज करते हैं? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो कि बॉटल में पैक्ड रहता है ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे बॉटल को हम ट्रेवलर्स जो जब ट्रैवलिंग करने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं पानी पीने के लिए। पहले के समय में ऐसा नहीं था, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं हुआ करते थे। उस समय क्या करते थे लोग? पीपल इन अर्लियर टाइम यूज टू मेक फॉर ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स के लिए क्या करते थे? ये स्टेप बेल का निर्माण करते थे। स्टेप बेल, हियर राइट वर्ड इज ए स्टेप बेल। इस स्टेप बेल में पानी रहता था और स्टेप बेल में पानी ट्रेवलर्स जो है जाकर के स्टेप बेल में पानी पीते थे, अपनी प्यास बुझाते थे। पीपल इन अर्लियर टाइम यूज टू मेक स्टेप बेल। पहले के लोग स्टेप बेल बनवाया करते थे फॉर द ट्रेवलर्स के लिए, यात्रियों के लिए। और लोग कुछ और व्यवस्थाएं करते थे। पहले प्याऊ का निर्माण करते थे। प्याऊ एक स्थान ऐसा बनाया जाता था जहाँ पे पानी फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जाता था और उस स्थान से लोग जाकर के पानी पी सकते थे। और ये इस स्टेटमेंट में क्या है? पीपल इन अर्लियर टाइम में लोग किस चीज़ का निर्माण कराते थे? ट्रेवलर्स के लिए, यात्रियों के लिए स्टेप बेल का निर्माण कराते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी क्लियर। सेकेंड इज सर means what? Definitely students, sir mean lakes। जैसा आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा घटसी सर के बारे में, जो हमने घटसी जो है एक राजा का नाम था और उसी के नाम पे घटसी सर लेक्स घटसी राजा ने लेक्स का निर्माण किया था, जो कि बहुत यूनिक लेक्स था। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सर मीन्स होता है लेक्स। राजा घटसी ने सर लेक्स का निर्माण करवाया था। तो हियर सर मीन्स लेक्स। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस वर्ड इज अ प्रॉपर फॉर दिस स्टेटमेंट। थर्ड इज हियर स्टूडेंट, अराउंड द घटसी सर देयर आर। घटसी सर के अगल बगल, अराउंड इर्द गिर्द, अराउंड द घटसी सर देयर आर विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। पानी तक पहुंचने के लिए स्टेप्स बनाए गए थे। और क्या था? अराउंड द घटसी सर देयर आर घाट्स बनाए जाते थे। उस घाट्स में स्टेप लगे होते थे और स्टेप कहाँ तक जाते थे? पानी तक पहुँचने का वो वे होता था। जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, स्टेप बनाए जाते थे, वो पानी तक पहुँचने के लिए वे होता था। अराउंड द घटसी सर, वो घटसी सर लेक्स के चारों तरफ घाट बनाए गए थे विथ स्टेप लीडिंग बाय टू द वाटर। वाटर को
वाटर तक पहुंचने के लिए स्टेप्स के माध्यम से वहां पर लोग पहुंचते थे। तो हियर अराउंड द घाटसीसर देयर आर घाट्स विथ स्टेप लीडिंग टू द वाटर, देन दिस वर्ड इज ए सुटेबल। लेट्स सी अनदर, जैसलमेर गेट वेरी रेनफॉल। जैसलमेर में क्या होता है? जैसलमेर राजस्थान का एक प्लेस है। जैसलमेर में बहुत ही कम बरसात होता है, वेरी लिटिल, दिस वर्ड इज ए प्रॉपर, वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, दिस वर्ड इज ए प्रॉपर वर्ड। लेट्स सी लास्ट स्टेटमेंट, फिफ्थ, एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड, कुछ स्थानों पर जहाँ पे लेक्स फिल हो जाता है अब विथ रेन वाटर, बरसात के पानी से लेक्स जब कभी पूरी तरह से फिल हो जाता है, भर जाता है, द पीपल गेदर अराउंड द लेक्स टू, लोग लेक्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, द लेक्स टू सेलिब्रेट, हियर इज द वर्ड सेलिब्रेट। देन किस लिए इकट्ठा होते थे? सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। ओके, सो एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर, कुछ स्थानों पे जहाँ पे लेक्स रेन वाटर के थ्रू पूरी तरह से भर जाता था, द पीपल गेदर, लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे अराउंड द लेक्स, लेक्स के इर्द गिर्द, और वहाँ पे क्या करते थे? सेलिब्रेट करते थे, उत्सव मनाते थे। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ सो ह्यूज लेवल ऑफ द वाटर, सो बिकॉज पीपल गेदर एंड जस्ट सेलिब्रेट अबाउट द दिस हैपनिंग। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you must be clear. Once again I would like to revise, people in earlier time used to make स्टेप वेल फॉर द ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स के लिए पहले लोग क्या बनवाया करते थे? स्टेप वेल का निर्माण करवाया करते थे। इज इट क्लियर? सर मीन्स लेक्स, हियर इज द वर्ड लेक्स, अराउंड द घाटसीसर देयर आर घाट्स, घाटसीसर के चारों तरफ घाट्स बनवाए गए थे विथ स्टेप लीडिंग, जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी और वो वाटर तक पहुँचती थी। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, जैसलमेर में बहुत कम बरसात होता है। एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स गेट फिल्ड, कुछ स्थानों पे जहाँ पे लेक्स फिल पूरी तरह से हो जाता है विथ रेन वाटर, रेन वाटर के थ्रू द पीपल गेदर एंड पीपल गेदर अराउंड द लेक्स, लेक्स के चारों तरफ इकट्ठा होकर के वहाँ पे सेलिब्रेट करते। Okay students, I hope you must be clear. Let's see another question students. Dear students, let's see last question. Write T for true and F for false. Write T for true and F for false. Okay, here is the question, write T for true, F for false. So students, firstly, rain water should be collected in underground tank for future use. रेन वाटर को कलेक्ट किया जाना चाहिए इन अंडरग्राउंड टैंक में फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के यूज के लिए रेन वाटर को कलेक्ट किया जाना चाहिए। इज इट ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू। रेन वाटर को अगर हम अंडरग्राउंड टैंक में जो है कलेक्ट करेंगे तो इन फ्यूचर हम इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे रूफ का पानी अगर हम वो पाइपलाइन के थ्रू उसको अंडरग्राउंड टैंक में पानी डालें और जो रेन वाटर के बरसात के पानी का जो कनेक्शन है ज़्यादातर और जगहों से हम उस अंडरग्राउंड टैंक में उसको वहाँ पे कनेक्ट करें तो क्या होगा, उस पानी को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक फॉर फ्यूचर यूज। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड टैंक में तो ये फ्यूचर यूज में
हमें आ सकता है, भविष्य में हमें काम में आ सकता है, हमारे काम में आ सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ टोटली ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकेंड स्टेटमेंट्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन जो है ये अर्थ का, पूरे पृथ्वी का सबसे मेन सोर्स है वाटर का। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। सो हियर ट्रू। ओके, थर्ड इज हियर स्टूडेंट्स, राइज इन पॉल्यूशन आल्सो कॉजेज वाटर शॉर्टेज। पोल्यूशन जब बढ़ता है, आल्सो कॉजेज वाटर शॉर्टेज, ये वाटर की कमी भी कर देता है। कैसे? जब पोल्यूशन होगा, पानी में पोल्यूटेड वाटर हो जाएगा तो हमारे यूज में वो नहीं आएगा, जिसके वजह से हमें पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो राइज इन पॉल्यूशन, पोल्यूशन में बढ़ोतरी, पोल्यूशन में ज़्यादा इजाफा होना, आल्सो कॉजेज वाटर शॉर्टेज, ये वाटर शॉर्टेज का एक कारण बनता है, काज बनता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर। द सॉइल अराउंड ट्री शुड बी कवर्ड विथ कंक्रीट एंड सीमेंट। द सॉइल अराउंड ट्री, ट्रीज जो होते हैं उनके अगल बगल इर्द गिर्द, पेड़ों के इर्द गिर्द अगर हम कवर कर देते हैं कंक्रीट से और सीमेंट से, तो ये क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? द सॉइल अराउंड ट्री शुड बी कवर्ड विथ कंक्रीट एंड सीमेंट। क्या पेड़ों के इर्द गिर्द हमें कंक्रीट और सीमेंट से क्या उसको कवर्ड कर देना चाहिए? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्रीज के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ से रेन वाटर, पानी का अवशोषण भारी मात्रा में ज़मीन के अंदर होता है, जिससे ज़मीन के अंदर का वाटर लेवल ऊपर आ जाता है और हम आसानी से पानी को ऊपर ला सकते हैं विथ हैंड पंप और बोरवेल के माध्यम से हम पानी यूटिलाइज करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वर्क मस्ट बी वेरी बैड फॉर अस। So the soil around trees should be covered with concrete or and cement. क्या कंक्रीट और सीमेंट से ट्रीज के अराउंड में सॉइल को कवर्ड कर दिया जाना चाहिए? दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। नो नेवर, दैट इज गोइंग टू अ बिग प्रॉब्लम। सो बिकॉज वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ वर्क। The soil around trees should be covered with concrete and cement. This statement is a false. Okay students, I hope you must be clear. Let's revise. Rainwater should be collected in underground tank for future use. क्या रेन वाटर फ्यूचर यूज के लिए अगर हमें हम अंडरग्राउंड टैंक में इसको कलेक्ट करते हैं तो क्या ये फ्यूचर यूज में आ सकता है? डेफिनेटली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट्स। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पृथ्वी का सबसे मेन सोर्स है रेन, पानी के लिए। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। डेफिनेटली दिस इज आल्सो ट्रू। राइज इन पोल्यूशन में बढ़ोतरी आल्सो कॉजेज वाटर शॉर्टेज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट्स। द सॉइल अराउंड ट्री शुड बी कवर्ड। क्या पौधों के या पेड़ों के इर्द गिर्द के सॉइल को, मिट्टी को हमें कवर कर देना चाहिए कंक्रीट और सीमेंट से? दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। नो, देयर इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अराउंड द ट्री, so we have not to do this type of work. So students, I hope you must be clear. So just watch my full video. If you having any doubts, please come on my personal WhatsApp. So thank you students, thank you so much, have a great day.